آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ آج بھی نیب کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے جو پاکستان اسٹیٹ آئل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں نیب نے الزام لگایا ہے کہ جو پروسیجرز ہیں وہ فالو نہیں ہوئے۔ بہرحال جو اس کیس کی حقیقت ہے وہ تو سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بتا دی ہے، لیکن کیس چلایا جا رہا ہے تو ہم بھی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن جو انصاف کی بات ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ نہ کیس میں کوئی حقیقت ہے، نہ کیس کے اندر کوئی دلیل ہے، لیکن کیس چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ ان معاملات کو فیس بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اس نظام کے ساتھ بھی چلتے ہیں، جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج وہ ادارہ نیب جو دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، آج خود کٹہرے میں کھڑا ہے۔ براڈ شیٹ اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں نیب نے الزام لگایا ہے کہ جو پروسیجرز ہیں وہ فالو نہیں ہوئے۔ بہرحال جو اس کیس کی حقیقت ہے وہ تو سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بتا دی ہے، لیکن کیس چلایا جا رہا ہے تو ہم بھی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن جو انصاف کی بات ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ نہ کیس میں کوئی حقیقت ہے، نہ کیس کے اندر کوئی دلیل ہے، لیکن کیس چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ ان معاملات کو فیس بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اس نظام کے ساتھ بھی چلتے ہیں، جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج وہ ادارہ نیب جو دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، آج خود کٹہرے میں کھڑا ہے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ نیب کی کہانی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے نیب کیا کر رہا تھا اور آج نیب کیا کر رہا ہے۔ یہ 20 سال کی تاریخ جو ہے یہ براڈ شیٹ کے معاملے میں ایک بڑی واضح اور بڑی تلخ حقیقت ہے کہ نیب اس ملک میں کیا کرتا رہا ہے اور نیب آج کیا کر رہا ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ نہ نیب کو خود شرم آتی ہے اور اس سے پوچھنے والے بھی آج خاموش بیٹھے ہیں۔ اگر انصاف کی بات ہوتی تو آج عدالتوں میں سو نوٹس لیا جاتا کہ نیب کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ پاکستان کے عوام کا 7 ارب روپیہ ایک کمپنی کے حوالے کر دیں، اور جب وہ کمپنی رپورٹ دے تو اسے کہیں کہ نہیں، یہ جو نام ہیں چند نام وہاں سے نکالے جائیں، چند نام چھپائے جائیں، اور پوری جو نیب کا زور ہے وہ ایک شخص پہ ڈالا جائے جس کا نام محمد نواز شریف ہے۔ اور آج 20 سال کے بعد بھی براڈ شیٹ کو تو بہت سے لوگوں کے خلاف ثبوت بھی مل گیا، ثبوت مہیا بھی کر دیا، لیکن ایک شخص کے خلاف کچھ نہ ملا اور اس کا نام محمد نواز شریف ہے۔ یہ نیب کی حقیقت ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سپریم کورٹ بھی فیصلوں میں لکھتا رہا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذریعہ ہے، یہ سیاستدانوں کو دبانے کا ذریعہ ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ وہ نیب جو اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو پروسیکیوٹ نہیں پرسیکیوٹ کرتا رہا، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ نیب کے پاس کوئی جواب ہے کہ اس نے 7 ارب روپیہ جو دیا اس سے کیا اس کو ملا؟ آج حقیقت یہ ہے کہ جو فیصلہ برطانیہ کی عدالت نے دیا ہے آج حکومت پر لازم ہونا چاہیے، نیب پر لازم ہونا چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو پبلک کریں، عوام کے سامنے رکھیں۔ وہاں سے آپ کو حقیقت ملے گی کہ ہوتا کیا رہا ہے اور نیب کرتا کیا رہا ہے۔
کہ उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा उनको एनआरओ नैब ने जारी किया, उनके नाम निकलवाए गए, उनको छुपाया गया, उनके जुर्म को छुपाया गया, और जिन के खिलाफ कुछ ना मिला उनको आज 20 साल से नैब जो है बदनाम भी कर रहा है, अदालतों में भी घसीट रहा है, जजों को भी ब्लैकमेल कर रहा है। ये आज पाकिस्तान में इंसाफ की हकीकत है। आज वो शख्स जिसको हमने 7 अरब रुपया दिया कि नवाज शरीफ को के खिलाफ मवाद इकट्ठा करो, जिसको कुछ ना मिला, उससे आला नैब के अफसरान, मौजूदा हुकूमत के लोग, उसने अस्करी अफराद पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि मुझसे पैसे मांगते थे। ये मामूली इल्ज़ाम नहीं है। आज अगर इंसाफ होता, हक की बात होती, तो ये लोग कटहरे में खड़े होते। आज हम नैब के कटहरे में रहते, नैब का चेयरमैन यहाँ खड़ा होता और जवाब देता कि उसने जो पैसा खर्च किया है, उसने जो कोशिश की है कि सियासतदानों को बदनाम किया जाए, मुल्क के 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म को बदनाम किया जाए, उसके खिलाफ मवाद इकट्ठा किया जाए, वो तो ना मिला। लेकिन जिनके खिलाफ मिला, जिन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है, जिन्होंने आज भी उस दौलत को लूटने के लिए जो रकम नैब ने दी है उसमें से भी हिस्सा मांगा, ये मामूली बातें नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हकायक अवाम के सामने आ गए हैं। हकायक जो हैं वो बरतानिया की अदालत की रिपोर्ट में हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत तो खुद शामिल है इस करप्शन के अंदर। आज हुकूमत के बुज़रा पर इल्ज़ाम लगा है, आज अस्करी इदारों के अफसरान पर इल्ज़ाम लगा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो ये जवाब एक न एक दिन देने पड़ेंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि आला अदलिया इसका नोटिस ले, सुओ मोटो नोटिस लिए। अगर एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के वीज़े पर नोटिस लेकर हुकूमत को तोड़ा जा सकता है, तो फिर वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन को छुपाया, इस मुल्क के पैसे ज़ाया किए, उस करप्शन को ढूंढने के लिए फीस अदा की, उसमें हिस्सा मांगा, उनसे भी पूछने की ज़रूरत है। ये आज मुल्क के हक़ाइक़ हैं। अच्छा शाहिद साहब, आप ब्रॉडशीट का जिक्र कर रहे हैं, उस पर 35-40 करोड़ रुपए के फ्लैट थे जो जिसके बारे में इंक्वायरी हो रही थी, अरबों रुपया दे दिया गया जुर्माने के तौर पर। लेकिन हुकूमत तो इस पर शादियाने बजा रही है, रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर करता है। तो हकीकत आप हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सो मोटो ले, तो आप लोग क्यों नहीं वो सारा जो ऑर्डर है वहाँ ब्रिटिश हाई कोर्ट का, वो सामने आवाम के सामने लाते ताकि हकायक लोगों को पता चले? ब्रिटिश हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है हुकूमत के पास है और नैब के पास है, मेरे पास नहीं है, लेकिन वो एक दिन छपेगा। आज भी जो बातें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर, वो मामूली नहीं है। नाम लेकर कहा गया कि किस शख्स ने पैसे मांगे, उस शख्स का ताल्लुक किस इदारे से था, हुकूमत के कौन सा आदमी वहां बैठा हुआ था। आज कोई जवाब है? आज कोई जवाब नहीं है। तो हुकूमत क्यों आज खाइफ है उस फैसले की रिपोर्ट को सामने लाने से? आज जो रिपोर्टें इस इदारे ने, और मेरा ब्रॉडशीट के बारे में भी बहुत से सवालात हैं, वो लहदा अपनी जगह पर हैं, मूसवी साहब के बारे में भी हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो रिपोर्टें हैं वो पब्लिक क्यों नहीं की जाती? जो अदालत का फैसला है बरतानिया का, वो पब्लिक क्यों नहीं किया जाता? छुपाने की क्या ज़रूरत है? आज जो दावेदार हैं मुल्क में करप्शन को ढूंढने वाले, आज वो खुद कटहरे में खड़े हैं। उन पर इल्ज़ाम लगा है कि आप किकबैक मांग रहे थे, आप करप्शन कर रहे थे, आप फीसों में हिस्सा मांग रहे थे। ये वो बातें हैं जिसके जवाबात पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। अच्छा शाहिद साहब, दौरा लंदन कैसा रहा? मुलाकात हुई? अगर हुई तो कितनी कामयाब उसको कह सकते हैं? देखिए, मुलाकात लंदन में मुमकिन नहीं है। यहाँ पर आज व्हाट्सएप भी है, टेलीफोन भी है, जूम भी है, तो मुलाकात तो हर वक्त यहाँ खड़े खड़े मुलाकात हो सकती है। वो बातें अपनी जगह पर हैं। पीडीएम जो है वो मौजूद है, अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देगी। साहब ये बताएं कि मूडीज के मुताबिक तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत बुलंदियों पर है और तरक्की कर रही है, इस पर आपका क्या तबसरा है?
दूसरा ये एक इल्जाम ये है कि स्टील मिल्स की निजकारी का फैसला आपकी काबीना ने किया था, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मूडीज की बात है, मूडीज पाकिस्तान में नहीं रहता। पाकिस्तान में हम रहते हैं, आप रहते हैं, पाकिस्तान के अवाम रहते हैं, पाकिस्तान का गरीब रहता है। आज ना बिजली है ना गैस है, महंगाई है, अरूज पर है, बेरोजगारी है। तो ये मूडीज की क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट देखकर जो हर हफ्ते बनती है, अगर शादियाने बजाने शुरू कर देंगे तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की करेगा जब मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। ये बात 2.5 साल ने वाजे कर दी है। इस बात का एहसास कर लें। और जहाँ तक आपने जी स्टील मिल की निजकारी जो है, स्टील मिल जो है ये पिछले 30 साल से निजकारी की लिस्ट पर है। 1990 में शामिल हुआ था। स्टील मिल जो है उसके मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। स्टील मिल की जो अपनी वायबिलिटी है उस पर बहुत से सवालात हैं। हमने पहले दिन से स्टील मिल के मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया, ये रिकॉर्ड की बात है। 5 साल तहफ़्फ़ुज़ किया और उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में उनका कसूर नहीं है। जो भी बाकी मानदा मुलाजमीन है उनका तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह हुकूमत की होनी चाहिए। शाह साहब, हुकूमत से तो आवाम को कोई अच्छी की तवक्को नहीं है। आपकी तहरीक जब से चल रही है, महंगाई मजीद बढ़नी शुरू हो गई है, चीनी फिर 105 रुपए तक पहुंच गई है, दीगर अशिया भी महंगी हो गई। तो लगता ये है कि पीडीएम ने भी लोगों को सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, तो कोई उनकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। पीडीएम के पास ना ट्रक है ना बत्ती है। पीडीएम तो एक तहरीक है, एक बुनियादी बात पर कि जब तक हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा ये तरक्की नहीं कर सकेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट थे, ये इलेक्शन जो चोरी हुआ, ये हाइब्रिड हुकूमतें बनी, ये सब नाकाम हो गई हैं। एक हुकूमत ही चलेगी और वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आइन के मुताबिक आएगी, आइन के मुताबिक चलेगी, वही पाकिस्तान को अवाम को रिलीफ दे सकती है। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।